हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका नीट पीजी 2024 के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एमडीएमएस कोर्सेज इन बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। फ्रेंड्स, बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज is also popularly known as BGS Medical College, and it was established in year 2012 and it is located in Bangalore. ये बैंगलोर सिटी के उत्तराहल्ली एरिया में लोकेटेड है। बीजीएस मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है विच इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी of Health Sciences. Well, because it is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, its counseling conducting body is KEA, that is Karnataka Examination Authority. Friends, if you want to pursue MDMS courses in BGS Global Institute of Medical Sciences, then you should have qualified for NEET PG 2024, and after that, after the qualification, you should appear for Karnataka Examination Authority NEET PG counseling, that is KEA NEET PG counseling. Well, फ्रेंड्स देखिए, बीजीएस मेडिकल कॉलेज जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रॉपर बैंगलोर सिटी में है, और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि अगर इवन इफ यू आर इन द हायर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट, इवन इफ यू आर ऑन द हायर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट द अलॉटमेंट ऑफ योर डिजायर्ड ब्रांचेस इन बीजीएस. व्हाई आई एम सेइंग दिस, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इन द लेटर हाफ. वेल फ्रेंड्स देखिए, बीजीएस मेडिकल कॉलेज बिकॉज इसके काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी केईए है, इसमें 3 टाइप की सीट्स अवेलेबल है. आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स, दोज हु हैव नॉट डन देयर एमबीबीएस फ्रॉम कर्नाटका. सो फॉर देम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीट्स आर अवेलेबल. जो पहली टाइप की सीट है उसे प्राइवेट सीट कहते हैं, प्राइवेट कोटा कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन कोटा. द अदर टाइप ऑफ सीट व्हाट इज अवेलेबल इज कॉल्ड द अदर्स कोटा, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट कोटा, एंड द थर्ड टाइप ऑफ सीट इज available is called the NRI category. Well, what happens in private quota seat is the open, that is also known as open quota. We will also individually discuss about the seat metrics for this year later on. So private quota fees, generally the fees is on the lower side here. It is around 13,80,000. So definitely the cutoff would be on the higher side. Now as well as the others quota, when we talk about others quota and NRI quota, see, you should understand one thing. There are 20% of seats total for NRI and others quota. Out of that 20% seat, 15% of the seat goes in NRI category, and the 5% of the seat goes in management category, that is also called the others quota. So, and the fees for others quota as well as the NRI quota is same. There is no difference between the seat. Only 5% of the seat is available in others quota and 15% is available in management NRI category. So friends, see, if you are on the higher side of the rank bracket and if you are having NRI sponsorship, if you are applying under NRI category, then the probability of getting the allotment is very high for the BGS. Why? Because the fees is also on the higher side. Be ready to spend out some extra money, some higher amount of money as far as BGS is concerned, that you will come to know. Well, let us talk about first the seat distribution. What is the seat distribution for this year's counseling? Friends, as you can see here, in radiology, in open category there is no seat. In open category there is no seat for radiology. NRI also doesn't have any seat in BGS. Management category, management quota is having 1 seat. Management quota is having 1 seat for BGS in NRI category, for radiology. See friends, I will tell you one thing. अगर आप हायर स्कोर के ब्रैकेट में हैं, जैसे कि अगर आपका स्कोर 80,000 से लेके 1 लाख तक का भी आपका रैंक, अगर ऑल इंडिया रैंक में आप आते हैं, तो भी फ्रेंड्स रेडियोलॉजी बीजीएस में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि केवल 1 सीट अवेलेबल है, कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए. क्यों मिलेगा? जब हम लोग इसके फीस का डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चलेगा. डर्मेटोलॉजी, डर्मा, देयर इज नो सीट इन द ओपन कैटेगरी, ओनली 1 सीट इन एनआरआई कैटेगरी, एंड मैनेजमेंट कोटा ऑल्सो डजंट हैव एनी सीट फॉर डर्मा. देखिए, डर्मेटोलॉजी का पूरे कर्नाटक में अगर आप एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की सीट मैट्रिक्स उठा के देखें तो केवल 59 सीट्स इज अवेलेबल इन डर्मेटोलॉजी. तो डर्मेटोलॉजी इज द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांच दिस ईयर फ्रेंड्स. जनरल मेडिसिन ओपन कैटेगरी में 4. देखिए, ये ओपन कैटेगरी क्या, पहले आप इसको समझ लीजिए. ये ओपन कैटेगरी वो है, इट इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन देयर एमबीबीएस फ्रॉम कर्नाटका, हु हैव डन देयर एमबीबीएस फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका, दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस ओपन कैटेगरी सीट. तो मेडिसिन, जनरल मेडिसिन इज 4 सीट्स आर अवेलेबल इन ओपन कैटेगरी, 2 सीट्स आर अवेलेबल इन NRI and 1 seat is available in management quota. So जनरल मेडिसिन में अच्छी खासी सीटें हैं बीजीएस के पास. देखिए, अगर इसके हम लोग थोड़ा सा बहुत
हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो की भी हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका जो बीजीएस का जो हॉस्पिटल है वो ये हॉस्पिटल जो है वो 750 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें बेड ऑक्यूपेंसी की रेट अराउंड 65% इन लोग की बेड ऑक्यूपेंसी की रेट रहती है। और पर डे अगर एवरेज पेशेंट फ्लो की बात करें तो बिटवीन 500 to 600 पर डे इन लोग का एवरेज पेशेंट फ्लो रहता है। पेशेंट फ्लो ओके है फ्रेंड्स, ना ही खराब है ना ही उतना अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, ठीक है, ओके है। पीडियाट्रिक्स में एक सीट ओपन कैटेगरी में है, एक सीट एनआरआई कैटेगरी में है और एक सीट मैनेजमेंट कोटा में है। वही अगर गायनेकोलॉजी की हम लोग बात करें तो गायनेकोलॉजी में एक सीट जो है वो आपको ओपन कैटेगरी में है, एनआरआई कैटेगरी में कोई भी सीट गायनेकोलॉजी की अवेलेबल नहीं है और एक सीट आपको मैनेजमेंट कोटा में अवेलेबल है। सर्जरी में 5 सीट्स आर अवेलेबल इन ओपन कैटेगरी, एक सीट आपको एनआरआई में है और 2 मैनेजमेंट में है। देखिए 2 सीट मैनेजमेंट में सर्जरी का होना वो भी अच्छा सीट माना जाता है। ऑर्थो 2 सीट अवेलेबल है आपको ओपन में, एनआरआई में 1 सीट है, मैनेजमेंट में कोई भी सीट नहीं है। अब फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट्स फी स्ट्रक्चर। इसके फी स्ट्रक्चर का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड जो इसका फी स्ट्रक्चर जो आया है, जो फी स्ट्रक्चर इस साल का जो इन लोगों ने फी स्ट्रक्चर डिसाइड किया है वो है रेडियो का। जो अगर आप मैनेजमेंट कोटा की फीस की बात करें तो 1 करोड़ 30 लाख इज द मैनेजमेंट कोटा फीस फॉर रेडियोलॉजी। जस्ट इमेजिन 1 करोड़ 30 लाख। देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप 80,000 से लेके 1 लाख वाले भी रैंक के ब्रैकेट में हैं तो भी आपको रेडियोलॉजी मिलने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसकी फीस बहुत ही हायर साइड पे है। वही डरमा की फीस अगर मैनेजमेंट कोटा एनआरआई कोटा की बात करें, देखिए मैनेजमेंट में कोई सीट नहीं है डरमा में। 1 करोड़ 30 लाख रुपीज, 1 करोड़ 30 लाख इज द फीस फॉर डर्मेटोलॉजी इन बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर डरमा अंडर एनआरआई कैटेगरी। जनरल मेडिसिन 85 लाख पर एनम, 85 लाख रुपीज पर एनम जनरल मेडिसिन की फीस है। सेम फीस है आपको एनआरआई एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा में। पीडियाट्रिक्स 80 लाख की फीस आपको पीडिया में पड़ेगी, दोनों में सेम है एनआरआई और मैनेजमेंट में। गायनेकोलॉजी 85 लाख इज द पर एनम फीस फॉर गायनेकोलॉजी। और गायनेकोलॉजी 85 लाख में भी देखिए फीस थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड। जनरल सर्जरी 70 लाख। देखिए 70 लाख जनरल सर्जरी के लिए काफी ज्यादा फीस होती है, तो अगर हायर रैंक के हायर ब्रैकेट में भी हैं तो भी यू शुड अटेम्प्ट फॉर यू शुड and if your budget permits, so you should definitely attempt for BGS because 70 lakhs is little bit higher side। वही ऑर्थो की अगर आप फीस देखिए तो 75 lakhs। देखिए फ्रेंड्स 70 lakhs और 75 lakhs जो है वो फ्रेंड्स ऑर्थो और 75 lakhs ऑर्थो और 70 लाख सर्जरी के लिए भी फीस हायर साइड पे है। देखिए एक चीज को आपको समझना होगा, the thing is when you are falling in the higher side of the rank bracket, then you should always target those colleges whose fees is high as well as whose intake is high। देखिए ये दोनों चीज को इस हिसाब से अगर आप अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे व्हेन द परसेंटाइल कम्स डाउन, कि उस कॉलेज को टारगेट करें जिसकी फीस हायर साइड पे है और जिसकी सीट्स भी इंटेक भी ज्यादा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर अलॉटमेंट इज ऑन द हायर साइड। क्योंकि एक एक नंबर के लिए, एक एक मार्क्स के लिए जो है वो आपको अलॉटमेंट रह जाता है पीजी में। इस चीज को आपको माइंड में रखना होगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमडीएमएस कोर्सेज के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।